Good morning students, welcome to the class again. I am Kiranjit from DAV Police Public School Kathal. Dear students, as you know that today we are going to start a new chapter, that is A Hero by R.K. Narayan. But before starting our chapter, I want to share a little information about R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the most famous and widely read Indian novelists. He was born on October 10, 1906 in Madras, now Chennai. He began his writing career with Swami and Friends in 1935. Most of his work is set in a fictional town of Malgudi, which captures everything Indian while having a unique identity of its own. He told stories of ordinary people trying to live their simple lives in a changing world. His style is marked by simplicity, elegance, and subtle humor. He passed away in 2001. So, dear students, this is the little information about the novelist, writer R.K. Narayan. So, I am going to explain the story. The main character of the story is a small boy, Swami. This is the story about a small boy, Swami, and we find out how he becomes a hero suddenly. So, I am going to start the story from the first paragraph. I am going to read the story. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, "Swami, listen to this news. An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger." The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. So, students, in this paragraph, the writer says that स्वामी के लिए जो घटनाएं थी वो एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती थी. घटनाएं उसके लिए ऐसी बन जाती थी कई बार उसके साथ ऐसा घट जाता था जिसकी उसको उम्मीद नहीं होती थी. एक बार इसमें क्या है, फादर जो है हॉल में बैठे हुए लैंप की लाइट में क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो स्वामी को बोलते हैं, स्वामी क्या तुमने ये न्यूज़ सुनी? एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ थी एक विलेज लैड मीन्स एक विलेज के लड़के के बारे में. लैड मीन्स बॉय. विलेज का एक छोटा लड़का था, उसकी बहादुरी के बारे में थी. क्या था न्यूज़ में? जब वो जंगल के रास्ते अपने घर के लिए जा रहा था तो उसका आमना सामना फेस टू फेस मीन्स उसका आमना सामना हुआ एक टाइगर से. और फिर वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके फादर और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो वो लड़का है वो टाइगर के साथ वो किस तरह से लड़ा और वो फिर लड़ते हुए वो मीन्स किस तरह से वो लड़ा और फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और पेड़ पर वो आधे दिन तक रहा, तब तक रहा जब तक कि कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे नहीं और उन्होंने टाइगर को मार ना दिया. मीन्स उसने बहादुरी से लड़ते हुए अपने आप का बचाव किया और ये उसकी बहादुरी के बारे में थी ये न्यूज़. इसके बाद इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, a father looked at Swami fixedly and asked, what do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? इसके बाद आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, पूरा थोरली पढ़ने के बाद फादर है जो क्या करते हैं, स्वामी की तरफ फिक्सेडली मीन्स एक टक उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम व्हाट डू यू से टू दैट, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो. फिर स्वामी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो ज़रूर ही कोई ग्रोन अप पर्सन होगा
वो एक बॉय नहीं हो सकता, वो एक छोटा लड़का नहीं हो सकता कि एक छोटा लड़का किस तरह से एक टाइगर से लड़ सकता है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. इस पैराग्राफ में जो फादर है वो बोलते हैं, फादर स्नीयर्ड का मीनिंग है स्पोक इन अ स्कोनफुल मैनर, स्कोनफुल मैनर में डांटते हुए निंदापूर्वक बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो न्यूज़पेपर से। अ मैन, एक आदमी, एक पर्सन जिसके पास हाथी जितनी ताकत है पर फिर भी वो कावर्ड हो सकता है, और एक दूसरा पर्सन जिसके पास तिनके जितनी ताकत है पर उसमें करेज है, वो सब कुछ कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। फादर जो हैं वो ये सोचते हैं कि करेज ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और एज इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैं गांधी जी का आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। गांधी जी देखने में मीन्स इतने हेल्दी नहीं थे, इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, बट उन्होंने उनमें करेज था, ठीक है। उन्होंने अपनी करेज से, उन्होंने अपने साहस से किस तरह से हमें आज़ादी दिलवाई। ओके, सो फादर हैं जो वो ये सोचते थे कि करेज ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंथ और एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पेज 14 है जो वो ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द पेज 15। नेक्स्ट पेज 15 पे फर्स्ट पैराग्राफ, स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी। यहाँ पे जो थ्योरी फादर ने दी थी कि करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, स्वामी इस थ्योरी को डिस्प्यूट करता है, मीन्स वो इस थ्योरी के खिलाफ बहस करता है, वो आर्ग्यू करता है और अपने फादर को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किस तरह से, सपोज़ करो, मान लीजिए मेरे में करेज है और मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए कि अगर एक टाइगर मेरे पे अटैक कर दे। फिर उसके फादर बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो, उसके फादर बोलते हैं चलो छोड़ो, स्ट्रेंथ को छोड़ो, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव योर करेज, क्या तुम अपना करेज मुझे प्रूव कर सकते हो, लेट मी सी, मुझे देखने दो कि किस तरह तुम आज अकेले मेरे ऑफिस रूम में सोओगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो, मैं मीन्स तुम्हारा करेज प्रूव हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट, he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, we are going to admit even elders in our cricket club. Hereafter, we are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. अब जब उसके फादर उन स्वामी को बोलते हैं कि तुम आज रात मेरे ऑफिस में सोओगे अकेले, तो स्वामी को ये जो प्रपोज़ल है, प्रोपोजिशन मीन्स प्रपोज़ल, ये प्रपोज़ल बहुत ड्रामना प्रपोज़ल लगता है कि ये वो सोचता है, स्वामी सोचता है कि ये तो बहुत ड्रामना है, क्योंकि ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, क्योंकि वो हमेशा अपनी ग्रैनी मीन्स अपनी ग्रैंड मदर के पास ही, अपने ग्रैंड मदर के बगल में, बिसाइड मीन्स अपने ग्रैंड मदर के साथ बगल में उनकी सोता था, और अगर उसके इस
स्लीपिंग अरेंजमेंट में, अगर इस अरेंजमेंट में कोई भी मीन्स चेंज होता था तो वो इस चीज़ को मीन्स एक्सेप्ट नहीं करता था। ये अगर उसको कहीं और सुलाया जाता था वो कांपता था और सारी रात जागता रहता था। ही होप दैट फर्स्ट, उसने शुरू में सोचा कि ये उसके फादर जोक कर रहे हैं। उसने आराम से ममल्ड मीन्स धीरे से आवाज़ में बोल दिया यस, और फिर उसके बाद उसने सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो किसी ना किसी तरह से इस बात को टाल दे। ही सेड वेरी लाउडली, और फिर पूरे एंथुसियाज्म से वो पूरे जोश से बोला कि हम अपनी क्रिकेट टीम में अब के बाद आज से एल्डर्स को भी एडमिट कर रहे हैं, एल्डर्स को भी भर्ती कर रहे हैं, और हम नए ब्रांड न्यू बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं। और हमारे जो कैप्टन हैं, क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने ये बोला था कि मैं आपको ये सब कुछ बता दूं। इसके बाद इन नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल सी अबाउट इट लेटर। फादर cutting. You must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. अब क्या है इस पैराग्राफ में, अब जब स्वामी प्रीवियस पैराग्राफ में जब स्वामी टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है तो फादर उसकी बात को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, तुम्हें अभी से ही अकेले सोना होगा। स्वामी रियलाइज़ करता है कि उस मामला है जो उसके हाथों से निकलता जा रहा है, अब उसके कंट्रोल में नहीं है ये मैटर। और फ्रॉम अ चैलेंज, अब चैलेंज से ये एक कमांड बन गई थी। अब उसके फादर उसको चैलेंज नहीं कर रहे थे, वो उसको कमांड दे रहे थे। और ये इस तरह के मोमेंट्स में, इस तरह की बातों में, इस तरह के क्षण मोमेंट्स में वो जानता था कि उसके फादर की टेनेसिटी मतलब फर्मनेस, उसके फादर बहुत ज़्यादा फर्म हो जाते थे। वो हमेशा अड़ जाते थे वो अपनी बात पे। अब अगर उसके फादर ने स्वामी को ऑफिस में सोने के लिए बोल दिया तो उसको सोना ही पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। अब स्वामी बोलता है कि पिताजी मैं नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से सो जाऊंगा। बट फादर, नेक्स्ट लाइन में फादर क्या बोलते हैं, नो यू मस्ट डू इट नाउ, इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और mother like a baby. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. अब क्या है, फादर स्वामी को बोलते हैं नहीं, तुम्हें अभी से ये करना पड़ेगा। जब स्वामी बोलता है कि वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से मीन्स फर्स्ट डे से सोएगा, तो स्वामी के फादर बोलते हैं नहीं, तुम्हें अभी ये करना पड़ेगा। ये कितना डिसग्रेसफुल है। डिसग्रेसफुल मीन्स शर्मनाक है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के, अपनी दादी के और अपनी मदर के पास, अपनी माँ के पास, अपनी माँ के बगल में सोए रहते हो, एक बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम सेकेंड क्लास में हो गए हो। एंड आई डोंट लाइक, और मैं पसंद नहीं करता कि जिस तरह से तुम्हें ब्रोटअप मीन्स होता है परवरिश करना, तुम्हारी मीन्स तुम्हें पाला जा रहा है, जिस तरह से तुम्हें पाला जा रहा है ना, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। और ये बातें कहते हुए ही लुक्ड एट हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, मीन्स स्वामी की मदर की तरफ देखता है, जो क्या कर रही थी, स्वामी की मदर क्या कर रही थी, हु वॉज रॉकिंग द क्रैडल। रॉकिंग द क्रैडल मीन्स होता है झूला, मीन्स वहाँ पर एक छोटा बच्चा और था और छोटे बच्चे को झूले में डाला हुआ था, और जो मदर थी उसकी, वो क्या कर रही थी, झूले को झुला रही थी। और उसका फादर ये बात कहते हुए उसकी मदर की तरफ देखता है जो झूला झुला रही थी। तब उसकी जो मदर है, उसकी माता है,
वो उसको बोलती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, शी आस्क्ड, उसने बोला, मीन्स उसकी माता ने बोला, और आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे नहीं कुछ पता इस बॉय के बारे में। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड। अब तब फादर थोड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सैड एंड टर्न्ड अवे। अब जो स्वामी है उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माता यानी कि स्वामी की दादी इसको बिगाड़ रही है स्वामी को, तो उसी को बोलो, मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। शी सैड एंड टर्न्ड अवे, वो ऐसा बोलती है और टर्न्ड अवे मीन्स मुड़ जाती है, वहाँ से चली जाती है। सो यहाँ तक हमने 2 पेजेस, पेज नंबर 14 और 15 की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। मैं अब इन 2 पेजेस में से, इन 2 पेजेस में से आपको एक्सट्रैक्ट भेजूंगी और आपको उन एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।